Hello, my dear friends. If you want to understand how to identify a fake currency, whether no matter what kind of currency you're using in India, you can find it out because there are many persons who are providing fake currencies all around. They're circulating fake currencies. Even I got counted in this. One day, a customer, by mistake, they gave me the cash payment and it was all of 500, the denominations of 500. So out of that 500, I went to the gas station and I asked the lady who was filling the gas, that, ma'am, I need to fill the gas for 500 rupees, 500 international rupees. So when I gave her the currency note, she immediately told me that it's fake. I was really shocked. I was shocked because I was having too much of an amount in the denominations of 500. I took out my wallet and I started checking it. I asked her, could you help me? She told yes, sir. She found that only that particular note was a fake note and it was really seeming to be like original note. How she identified? First of all, when you have a currency, for example, I'm taking a 100 international rupee currency. You should feel like this, the sound, the cracking sound. Because original note is a cracking sound and the duplicate note is a sandwich note, or it's having a very different kind of paper which is used for currencies. Same applicable for 50 Indian national rupee also. The sound is really cracking sound. This is needed. So immediately I thought that that lady might have did some mistake or what. I went to the CDM machine. There's a cash deposition machine of my particular bank, that State Bank of India. When I went to CDM machine and I deposited 4,500 was accepted by the machine. That 500 note is detained and I got a slip that 4,500 has been deposited to my account, but this particular number note is not deposited. So I went inside to the branch. I had a word with the branch manager. He told me, sir, that means that currency was fake. I asked him whether it would be any kind of legal circumstances on me. He said, no, sir. You are a very loyal and responsible citizen that you came to the CDM machine, you identified it, and the CDM machine gave you the confirmation that the currency was not original. So I filled the form, and then after 3 days, that 500 rupee got credited in my account. That means government has given me the chance that I should not lose my money if I am loyal towards the government and towards the Reserve Bank of India. So I followed the protocols. Now, this is very, I would say, very sadly happening in India because right now the neighboring country, that is Pakistan, is actually tampering with our currencies. Pakistan supports terrorism, and the country which supports terrorism will never see another country, its neighborhood country, to flourish in terms of peace. So to disturb our economy, usually they circulate all these kinds of notes, all these kinds of currencies. They out of 100 original notes, they just take out 2 or 3 notes, and 2 or 3 notes will be replaced with the fake currency. And usually, generally, people don't judge on that particular thing. So today, I'm going to help you to understand this. I have given you the details how to identify that thing. Now, step by step. First thing, the currency notes, the original currency notes, which RBI prints, is actually made up of pure 100% cotton paper. This is what I'm holding is 100% cotton paper. Second thing, the micron size, the size, the width and the length of the paper. The micron size is 90 to 100 microns, that is 0.09 to 0.1 millimeter, not more than that. That means if you hold the note, you'll feel a little bit of weight. The fake currency doesn't have a weight. It is having a little bit of 0.1 gram of weight also. The thickness is also of 0.9 to 1.1 mm, the thickness, the borderline of the note. Then there is a weight. I just inform you, 90 to 100 grams per square meter should be the weight of the note. Means whenever you will hold an original currency, you'll feel, even a single note will feel, okay, fine, it's having some weight. This can be identified by a blind man because blind man cannot identify all these features like holding this, seeing the watermark and everything. They use these ridges. They just close their eyes and they just feel the note. They feel the impressions like Mahatma Gandhi's emblem, Mahatma Gandhi's photograph. If you just hold it, closing your eyes, you'll feel a little bit embossed, a little bit above than paper. And then there is one more thing. Yeah, there's a translucent. If you see over here on light, it's a translucent. You can see another Mahatma Gandhi. It is not exactly seen in a fake note because a fake note doesn't have a translucent field. Then there is a security strip written with RBI, and one more thing. Usually it is seen that microprinting from RBI and intaglio printing. Intaglio printing. What is intaglio printing? Like embossings. A blind person can fill, even a normal person. And look the numbers. The numbers are not in one sequence. 2 numbers are a little bit bigger, then smaller, then 4 numbers are much bigger.
This is this is how RBI tends to avoid fake currency, because if a fake currency person cannot use all those intaglos in different formats. Then raised printing of Mahatma Gandhi and Ashok Pillar. I have already informed you. So the next time, whenever you get a fake currency, don't get panicked. Don't try to use it in the market, because you are actually promoting it from your side and you're helping those people who are spoiling the currency. It's much better to visit to a bank, ask the branch manager, what should I do? And you need to do nothing. They will fill your form. They will take that currency note and will notify you within 7 days in your account the same amount which you have actually, you got a fake currency. That means it's a loss. But the government, the RBI or your own bank will compensate that loss with the same amount of currency deposited or credited in your bank account. So just find all those things, whatever I have told you, and be alert, because there are many people who feel that India is progressing. They are trying to hamper through fake currencies. And this is not a new subject, it's a very old subject. Still, people are not following the protocols, which actually every time RBI informs them. If you find this information interesting and a little bit helpful for those people who don't understand the meaning of currency, please circulate it. आपको ये बताना चाहूँगा कि भी हाल ही में किस्सा हुआ था, जिसमें मुझे एक कस्टमर ने, मेरे जो ट्यूशन्स के कस्टमर थे, उन्होंने मुझे 5,000 रुपीज़ का पेमेंट किया, उन्होंने कैश दिया। अब मैंने गिना और रख लिया। फिर मैं गया पेट्रोल पंप, मैंने बोला चलो मैं पेट्रोल भरा लेता हूँ। मैंने वहाँ पे वो मैडम खड़ी थी पेट्रोल भरते हुए, मैंने मैडम को, मैडम ये 500 रुपीज़ है, मुझे 500 का पेट्रोल आप भर दो। उसने नोट को पकड़ी और मुझे बोली सर ये नकली। मैं 2 मिनट के लिए शॉक हो गया, क्योंकि बाकी और भी मेरी जेब में 4,500 रुपये। मैंने बोला मैडम आप मुझे मदद कर सकते हैं पता करने, अगर ये बाकी भी नकली है तो फिर मैं उनको जाके वापस करूँगा जिनसे मैंने लिया। तो उसने बाकी चेक करी तो उसने बोली नहीं सर बाकी नहीं है, सिर्फ एक ही नकली। अब मुझे तब भी वो लेडी पे भरोसा नहीं हुआ। यार मेरे पास कैश दूसरा भी था, तो मैंने पेट्रोल तो भरा लिया, तो यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे 500 का नोट का लॉस कैसे हो सकता है। सुना है कि मार्केट में फेक करेंसी चल रही है, पर ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम, इवन मेरे जैसे एजुकेटेड इंसान के साथ भी ये फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मैं भी थोड़ा सा एक शॉक में था। मैं चलो इसको चेक करते हैं। मैं गया CDM मशीन, कैश डिपोजिशन मशीन जिसे कहते हैं। मैं वहां गया, मैंने वो 500 रुपए का नोट उसमें रखा मशीन में। पहले मैंने 4,500 रुपए डाले, देखता हूँ जाता है, वो चला गया मेरे अकाउंट में जमा हो गया। मैंने 500 का नोट डाला, 500 का नोट जैसे ही डाला वो नोट डिटेन हो गया और मुझे एक से भारी, योर नोट हैज बीन डिटेन ड्यू टू फाइंडिंग द फीचर्स, फॉल्स फीचर्स इन द करेंसी। अब मैंने बोला मेरे पास आ गया प्रूफ, मैं गलत नहीं हूँ। अगर मैं चाहता तो वो नोट को मार्केट में फैला सकता था, जैसे लोग करते हैं, अरे आगे ना चलना किसी और को चिपका देते। आप प्रोत्साहित कर रहे हो उन लोगों को जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं। मैं गया बैंक के अंदर, मैंने SBI के ब्रांच मैनेजर से मिला, बोला सर ऐसा ऐसा है, मुझे ये नोट किसी ने दिया था मेरे कस्टमर ने, पर ये फेक निकला है। तो बोले सर कोई चिंता की बात नहीं, आपको पैसे का नुकसान नहीं होगा, आप ये फॉर्म भर दीजिए, विद इन 7 डेज आपके अकाउंट में आपका जो 500 रुपीज जो फेक करेंसी आपके पास आया, कोई दिक्कत नहीं, हम RBI आपके अकाउंट में 500 रुपीज डाल देगा। और आपने अच्छा काम किया कि आपने नकली नोट हमें ला के दिया, आपने उसे मार्केट में नहीं चलाया। तो उन्होंने मेरा फॉर्म भरा 5 मिनट के अंदर, मैंने नोट जमा किया, मुझे काउंटर फाइल दिया, मेरे मोबाइल पे एक मैसेज भी आया थैंक्स किया करके SBI की तरफ से, दैट यू हैव हेल्प्ड RBI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फाइंड आउट अ फेक नोट। सो मुझे उन्होंने 7 दिन के बाद क्रेडिट भी कर दिया। पर मैंने उसके बाद ये सोचा कि अगर मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ ये चीज हो सकती है, मेरे जैसे पढ़ा लिखा इंसान भी एक ये धोखा खा सकता है, तो आम नागरिक इस बारे में कैसे बचाएं। तो मैंने बोला चलो आज मैं आप लोग को ये बात बताता हूँ। वैसे बहुत पुराना टॉपिक है, कोई नया टॉपिक है नहीं है, आप सबको मालूम है बात, मगर फिर भी मालूम होने के बाद भी आज आप अपने नोट चेक कीजिए, अपनी जेब चेक कीजिए, कभी ना कभी आपके पास नकली नोट आते ही है। क्योंकि वो लोग बहुत सारे बंडल्स में क्या करते हैं, एक हाथ 2 नकली नोट निकाल के नकली नोट डाल देते हैं, और कमाते कैसे, इसी नोट को एक्सचेंज में ले जाते हैं, एक्सचेंज करके डॉलर रुपए कर लेते हैं, डॉलर लेकर पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान में जाकर उसको रुपए में, उसमें पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट कर देते। हो गया उनकी करेंसी चलेगी, हमारा नुकसान होगा, क्योंकि हमारे हाथ में नकली करेंसी चल रही है। करेंसी छापने के लिए गोल्ड जमा करना पड़ता है बस। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी नोट जब आप लेते हैं, याद रखिए 100 रुपए का हो, 500 का हो, 50 का हो, सबसे पहली बात तो उसको कान के पास रखिए, कड़कड़ाहट होनी चाहिए, कड़क होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ये पकड़ू ना मैं, ये ऐसा होना चाहिए कड़क एकदम। 50 का पकड़ो तो ऐसा कड़कड़ होना चाहिए, 50 हो, 20 हो, 10 हो, कड़कड़ होनी चाहिए नोट की, ठीक है। दूसरी बात, अब नोट के प्रिंटिंग कैसी होती है RBI में। RBI जो यूज करता है, ये जो नोट आप देख रहे हैं करेंसी नोट्स, RBI जो यूज करता है, ये 100% कॉटन का पेपर यूज करता है, 100% कॉटन पेपर, जो मार्केट में दूसरी प्रिंटिंग प्रेसेस को अवेलेबल नहीं करवाया जाता। वो सिर्फ RBI ही अपने लिए करेंसी के लिए बनवाता है, वो स्पेशल पेपर होता है। दूसरी बात, उसका एक साइज होता है, माइक्रोन साइज होता है, पेपर का एक माइक्रोन साइज होता है, जिसके हिसाब से पेपर की विड्थ, यानी वो सैंडविच नहीं होना चाहिए पेपर। अगर बहुत ज्यादा मोटा पेपर लेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि दो प्लेन नोटों को आजू बाजू से पीछे की प्रिंटिंग और सामने की प्रिंटिंग करके उनको सैंडविच करके बना के भी मार्केट में बेचा जा सकता है। अगर सैंडविच नोट को थोड़ा गीला करेंगे, जैसे टेयर करेंगे, तो आपका ऐसा अलग से होता हुआ दिखेगा। तो वो भी एक तरीका से करेंसी दिखाना, पता करने का, पर आप हर नोट को गीला नहीं कर सकते, ये भी बात है। तो मैंने जो फीचर्स बताया उस पर ध्यान देना। तो वो साइज होता है 90 टू 100 मिलीमीटर, 100 माइक्रोन का, जो कि होता है 0.09 टू 0.1 मिलीमीटर। इतना ही होना चाहिए पेपर का माइक्रोन, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
फिर इसके बाद आती है थिकनेस। थिकनेस मतलब अभी देखिए नोट है ना, नोट की थिकनेस होती है, बाजू की जो हम बोलते हैं, हमने मैथमेटिक्स में पढ़े हुए 9th-10th स्टैंडर्ड में कि नोट की थिकनेस होती है, जिसकी थिकनेस होती है 0.09 टू 0.1 ग्राम्स की। और कोई भी नोट जो होता है, चाहे 100 रुपए का लीजिए, 10 रुपए का लीजिए, 20 रुपए का नोट लीजिए, जब आप उसको हाथ में पकड़ते हैं, पैरेलल रखते हैं, तो वो नोट का वजन होता है। और हर नोट का वजन होता है पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो आप उसको समझते हैं कैसे, वेट होता है 90 टू 100 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। ये जब नोट छपता है ना बॉस, तो ये नोट अकेले नहीं छपता है, लाइन से पूरे नोट्स छपते हैं एक प्रिंट पे, एक प्रिंट के माइक्रोन साइज के ह्यूज पेपर पे। फिर उसकी थिकनेस की कटिंग होती है, फिर उसके बाद वो ग्राम बाय डिवाइस होता है। अब जितनी इंक इसमें लग रही है, वो इंक वगैरह मिलाकर एक नोट का वजन बनता है, ठीक है, इंक का भी लगा दिया। अब देखिए इसमें हम पता कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज, ठीक है, पहला पॉइंट होता है वाटरमार्क। अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये तो महात्मा गांधी जी तो सामने दिख रहे हैं हमें, हमारे राष्ट्रपिता, मगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये वाले व्हाइट पोर्शन पे, तो जब आप इसमें धूप में देखते हैं ना, ट्रांसलूसेंट दिखता है आपको। ट्रांसलूसेंट मतलब एकदम गांधी जी बने हुए हैं, मगर वो काफी धुंधले दिखते हैं, और ये दिखना चाहिए। अगर गांधी जी यहाँ पे डार्क दिख रहे हैं या गांधी जी दिख ही नहीं रहे, गायब है, समझ जाना वो नकली नोट है आपको, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, सिक्योरिटी थ्रेड। ये एक ग्रीन कलर का एक थ्रेड होता है, ग्रीन कलर का थ्रेड होता है, ये दिख रहा होगा आपको, ग्रीन कलर का। इसको अब आप कैसे पता करेंगे, आपके पास यूवी लाइट तो है नहीं, आप बैंक वाले तो हो नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मोबाइल का टॉर्च ऑन करना है। मोबाइल का टॉर्च ऑन करके उसकी जो फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट के ऊपर ये वाले नोट को आप रख दीजिए, और सिर्फ ऊपर नीचे कीजिए, वर्टिकल डाउनवर्ड, पैरेलल नहीं करना है, वर्टिकल डाउनवर्ड कीजिए। अगर उसमें आरबीआई लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि नीचे से आ रहा है चमकते हुए ऊपर में, आर पार हो रहा है, इसका मतलब वो नकली नोट है, क्योंकि आरबीआई की इम्प्रिंटिंग दोनों साइड की जाती है और दोनों सुपर इम्पोजिबल होती है। सुपर इम्पोजिबल होने के कारण उसमें लाइट पासिंग नहीं हो सकती, पहली चीज। तीसरी चीज क्या होती है, उसके बाद हो जाता है माइक्रो प्रिंटिंग। अच्छा, इसमें ना कुछ माइक्रो प्रिंटिंग्स होती है, जैसे देखिए ये माइक्रो प्रिंटिंग है, छोटी छोटी, कि मैं धारक को वादा करता हूँ कि मैं 100 रुपए अदा करूंगा। ये जो प्रॉमिस होता है, ये जो लिखा जाता है, ये बहुत माइक्रो प्रिंटिंग होती है, और ये एम्बोस्ड माइक्रो प्रिंटिंग नहीं होती, ये प्लेन माइक्रो प्रिंटिंग होती है। जो नकली नोट होता है उसमें एम्बोस्ड होती है, यानी वो अलग से उभर के दिखती है। अगर आप उसको ऐसे करके दिखेंगे ध्यान से, तो ऐसे उभर के दिखेंगी वो आपको, तो आप वो वहां से पता कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हो इंटैग्लो प्रिंटिंग। अब इंटैग्लो प्रिंटिंग क्या होती है ये समझते हैं। इंटैग्लो प्रिंटिंग का मतलब ये होता है, 3 तरीके की होती है। पहली होती है गांधी जी का चेहरा, 100 रुपए का निशान, और ये एम्बलम, अशोक एम्बलम। ये 3 चीजें ना अंधा इंसान भी आंखें बंद करके फील कर सकता है। ये एम्बोस्ड होती है, जब प्रिंटिंग होती है तो इसको एम्बोस करके प्रिंट किया जाता है, जिससे जो बड़े करेंसी नोट्स है, 500, 1000 तो बंद हो गया, 2000 तो बैट ही हो गया, ठीक है, 100 का है, इसके नोट के ऊपर आप ये चीज फाइंड आउट करते हैं। तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि यहाँ पे गलती नहीं करनी। बहुत सारे फीचर जो मैंने आपको बताया, उसमें से भी आप एक फीचर को पकड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कलर शिफ्ट। अच्छा, कलर शिफ्ट कैसा होता है, कलर शिफ्ट का समझते हैं। कलर शिफ्ट क्या होता है कि जैसे देखिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो मैंने फाइंड आउट की, कलर शिफ्टिंग फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। यानी अगर मैं 200 रुपए का नोट देखूं, मैं अगर ऐसे देखूं, ऐसे धूप में दिखूंगा, तो 200 रुपए का नोट में क्या होगा, वो ग्रीन कलर का दिखेगा, 200 लिखा हुआ। जैसे मैं ऐसे करके लाइट से ऐसे हिलाऊंगा, ऐसे से करके, तो ग्रीन से वो ब्लू दिखने लग जाएगा, वो नंबर चेंज होता है कलर। और यही पहचान है ओरिजिनल नोट की। नकली नोट का नंबर चेंज नहीं होता, ग्रीन है तो ग्रीन ही दिखेगा आपको, चेंज नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा। फिर हो जाता है बेटा रेस प्रिंटिंग। रेस प्रिंटिंग मतलब ठीक है, बहुत सारी रेस प्रिंटिंग, अगर मैं ध्यान से अगर हर नोट को छू ना, बहुत सारी। अब सबसे भयानक रेस प्रिंटिंग है 100 रुपीज की दिखती है, ठीक है। फिर तुम देखो इसके जो नंबर्स है ना, नंबर्स ना एक जैसे नहीं रहते, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बहुत बड़े, कुछ बहुत बड़े बड़े। ये जानबूझ के रखा जाता है, इसको इंटैग्लो प्रिंटिंग बोलते हैं। यानी एक तो एम्बॉसिंग वाली प्रिंटिंग रहती है, जिससे आप चीजों को, जो 3 फीचर्स उसको टच करके देख सकते हैं। अंधा इंसान है बेचारा, वो भी तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए किसी को देता है, हमने उसको वापस किया, भैया ओरिजिनल है कि नहीं, कैसे पता करेगा। अंधा आदमी क्या करता है, आंख बंद करता है और ऐसे करके चेक करता है, हाँ ये 100 है। तो ये जो है ना, ये जो एम्बॉसिंग लिखी जाती है, जो इंटैग्लो प्रिंटिंग यूज की जाती है, ये ब्रेल लैंग्वेज के लिए यूज की जाती है। जो ब्रेल लैंग्वेज होती है ना, वो एम्बॉसिंग प्रिंटिंग की होती है। तो कभी किसी दिन फुर्सत मिलेगा तो मैं आपको ब्रेल लैंग्वेज को पढ़ना सिखाऊंगा। मुझे ब्रेल लैंग्वेज मैंने पढ़ना सीखा है, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। बहुत ईजी स्टेप से, 3 स्टेप्स में मैं आपको ब्रेल लैंग्वेज पूरी पढ़ना सिखा दूंगा। इवन मैं आपको एक प्लेन पेपर के ब्रेल लैंग्वेज लिख कर दिखाऊंगा, वो इनविजिबल रहेगा पेपर, आपको ऐसा लगेगा एकदम सादा पेपर है। अगर आप उस पेपर में विद इन 1 मिनट एक ऐसा साइंस का कारनामा कर सकते हो कि वो सारे के सारे अल्फाबेट्स पूरे के पूरे आपको लिख के दिखेंगे। आई विल शो यू समडे। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, प्लीज अपना इस बारे में बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको नोट मिले तो घबराइए मत, उसको प्लीज कहीं चलाने की कोशिश मत कीजिए। बैंक जाइए, बैंक में आराम से बताइए उनको, कोई दिक्कत नहीं, कोई आप पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आप थोड़ी चला रहे हो। अगर आप इतने गलत होते तो बैंक आते ही नहीं थे। आप गलत नहीं हो, सीधा बैंक आए ना, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है। 500 रुपए आपके लिए मायने करता है, 100 रुपए मायने करता है। आज के डेट में रिक्शा वाला बेचारा, उसको कोई 100 रुपए देता है, नकली नोट रहेगा तो बेचारी किसकी तो मेहनत ही खराब होगी, क्या ले जाएगा घर में वो। तो बिल्कुल घबराइए मत, जाइए एजुकेटेड जैसे रहिए। ब्रांच मैनेजर आपकी पूरी मदद करेंगे। और फेक नोट वाले मामले में तो ब्रांच मैनेजर क्या, ब्रांच का पूरा स्टाफ मदद करता है, क्योंकि उनको एक इंसेंटिव होता है आरबीआई की तरफ से। अगर आपके बैंक में अगर फेक नोट्स अगर आप आइडेंटिफाई करके आरबीआई को वापस करते हैं, तो कुछ उनको स्पेसिफिक इंसेंटिव सारे एम्प्लॉइज को दिया जाता है। तो वो एक प्रकार से आप उन लोगों को इंसेंटिव अर्न करने में भी मदद कर रहे हैं, साथ में उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि अगर सही काम करेंगे, पब्लिक की मदद करेंगे, तो पब्लिक भी उनके लिए सोचेगी। इसी के साथ मैं आगे चाहता हूँ, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इसे आम नागरिक में जरूर पहुंचाएं। हालांकि टॉपिक बहुत पुराना था, तो नया नहीं था, पर मैंने सोचा अगर ये मेरे साथ हो सकता है, मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान के साथ हो सकता है, तो फिर एक आम नागरिक की तो अलग ही बात है, तो क्यों ना उनको समझाया। इसी के साथ मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप सबका। आपका काफी समय ले लिया, थोड़ा सा वीडियो लंबा था, बट
इसको जरूर देखिए और अपने परिवार के साथ बैठकर देखिए, बच्चों को सिखाइए, हो सके तो समाज में इसको सर्कुलेट करके सबका भला कीजिए। थैंक यू वेरी मच।